ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ پیر محل میں درخانہ روڈ پر کھڑے رکشے کو ٹکر، رکشہ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ کار کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ ٹکر کی وجہ سے کار میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ بری طرح جل کر خاکستر ہو گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کار نے رکشے کو ٹکر ماری ہے۔ آپ کو یہ مناظر بھی ABN کی سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ پیر محل میں درخانہ روڈ پر کھڑے رکشے کو کار کی ٹکر، رکشہ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ کار کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ ٹکر کی وجہ سے کار میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ بری طرح جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ سردیوں کے موسم میں مالٹا اپنی لذت میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ ہارون آباد کے باغات کوالٹی کے حساب سے بہت بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ مالٹا وائٹامن سی اور دوسرے وائٹامنز فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل مجید ڈاکٹر اور ان کے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کہ مالٹا انسانی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جی فیصل بتائیے گا۔ جی بالکل موجود ہوں میں ہارون آباد میں۔ سردیوں کی بات کی جائے اور مالٹے کی بات نہ کی جائے تو یہ تو بہت عجیب سی بات ہوتی ہے۔ جس طرح جو پھلوں کا بادشاہ ہے وہ آم کہلاتا ہے، اگر سردیوں میں مالٹے کو بھی ان کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے وٹامن سی اور دوسرے وٹامن ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ مالٹے کے حوالے سے سردیوں میں کیا فائدہ ہے۔ یہ جو فروٹ ہے جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی افادیت بہت زیادہ ہے جسم کے لیے۔ خاص طور پہ جو مالٹا ہے اس میں وٹامن سی بہت زیادہ ہے، اور یہ وٹامن سی جو ہے انسان کے سب اعضاء کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ قوت مدافعت جو ہے وہ بڑی پوری کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے تاکہ کوئی بیماریاں نہ لگیں، اور دوسرے اس میں سکن کی سیکورٹی ہوتی ہے، باقی چیزوں کی سیکورٹی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے، جو جوس ہوتا ہے وہ آپ کی پانی کی کمی بھی پوری کرتا ہے، وٹامن سی کی بھی پوری کرتا ہے، اور دوسرے جو اس میں وٹامن ہیں ان کو بھی پوری کرتا ہے۔ جی بالکل کہنا ہے ڈاکٹر صاحب نے اتنے مفید بتائے ہیں کہ یہ آپ کے پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے، اور دوسرے بھی تو سردیوں میں ضرور کنو کھائیں۔ جی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صاف ستھرا پنجاب کی مہم کے صفائی کرنے والی کمپنی کے 4 یونین کونسل کے ورکرز کی 2 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر ایمن آباد میں ہڑتال۔ ورکرز کا کہنا ہے کہ 2 ماہ سے ان کو تنخواہ کی ادائیگی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ان کے گھریلو اخراجات میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مزید جانیں گے جاوید یوسف ورک سے۔ سال بدلے شکلیں بدلی، اگر نہیں بدلی تو ہماری عادات نہیں بدلی۔ اس وقت میں موجود ہوں گجرانوالہ کے علاقہ موڑ احمد آباد ہائی وے کے اوپر، اور میرے پیچھے آپ تقریباً سینکڑوں افراد دیکھ رہے ہیں۔ یہ GWMC کے لوگ ہیں اور تقریباً 2-3 ماہ سے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ان کا ایک لیڈر ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تقریباً 2 مہینے تو کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سارا مطالبہ کیا ہے 5 تاریخ 6 تاریخ کو سیلری ملے گی، 7 تاریخ ہو گئی، 7 تاریخ کو کوئی سیلری نہیں ملی۔ پھر انہوں نے کہا اپنا چیک وغیرہ اکاؤنٹ کھلواؤ کے بعد سیلری پہنچ جائے گی۔ اکاؤنٹ کھلوائے نے 10-12 تاریخ جو ہو رہی ہے، اپنا سیلری کوئی نہیں مل رہی ہے۔ اسی اگے جناب سارے بندے سلاح کی کہ بہ جو چپ کر کے کام کر کے بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ کام کرنے کے بغیر بیٹھے۔ ہاتھ جوڑ کر اس ملک کے حکمرانوں کو وہ اپیل کر رہے ہیں، انتظامیہ کو اپیل کر رہے ہیں کہ خدارا ہمارے حال پر ترس کھایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو صاف ستھرا پروگرام شروع کیا ہوا تھا وہ انہی بچوں کو، انہی نوجوانوں کے اوپر بیس انہوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ انہوں کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ DC گجرانوالہ، کمشنر گجرانوالہ سے بھی وہ اپیل کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فوری نوٹس لیا جائے اور ایک مقرر تاریخ کی جائے جس پر انہیں تنخواہ دی جائے تاکہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ جی ABN نیوز کی خبر پر ایکشن۔ پیر محل میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے کمپیوٹرائزڈ سرٹیفکیٹ کے اجراء کی بندش کی وجہ کا معاملہ انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے نادرا سے نئی ID بنوا کر شہریوں کو سہولیات فراہم کر دی ہیں۔ مزید جاننے کے قاسم بھٹی سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں میونسپل کمیٹی پیر محل میں۔ یہاں پہ جو فوتگی اندراج اور نکاح نامے کے اندراج ہوتے تھے، یہاں پہ جو اس آفس کے انچارج تھے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے عرصہ 15-20 دن سے یہ دفتر میں عوام دھکے کھا رہی تھی، اور یہاں پہ نہ تو کسی کا نکاح نامے کا اندراج ہو رہا تھا، نہ ہی فوتگی کا جو سرٹیفکیٹ بنوانا تھا۔ ID بند ہونے کی وجہ سے وہ بند رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام پریشان تھی۔ تو ABN نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر پیر محل و ایڈمنسٹریٹر
म्यूनसिपल कमेटी साकिब बदनान ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए नादरा ऑफिस से इस आईडी को ऑन करवा दिया। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे क्या कहते हैं। जी ਇਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਈਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, इंशाल्लाह इंतराज होने लग पे। जी, जिस तरह के आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ पे पहले हमारे अंदराज नहीं हो रहे थे, आईडी बंद थी, अब आईडी चल गई है और हमारे अंदराज हो रहे हैं। जी सियालकोट में महंगाई में इजाफा हो गया, मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा जफर वसीम से। जी जफर, मुर्गिया का गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जी बिल्कुल जी, सियालकोट के चिकन मार्केट में चिकन के नर 6ठी सेंचुरी से तजावज़ कर चुके हैं, जबकि सरकारी नरनामे पर चिकन की नरकों की 6ठी सेंचुरी होने में भी 20 से 30 रुपये का फ़र्क बाकी है। चिकन के नरमों में इजाफे के बायस न सिर्फ के चिकन का कारोबार बल्कि इस कारोबार से मुंसलिक दीगर कारोबार मतलब बर्गर शवारमा का कारोबार करने वालों शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि वहाँ जो है वो सस्ते दामों ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा हासिल करने से महरूम हो चुके हैं। रेट लिस्ट जी गौरमेंट भेजती है ना, उस रेट लिस्ट नहीं वारा खांदा। गौरमेंट सिर्फ लिस्ट भेजती है, माल नहीं दिंदी। माल गड्डियां वाले दिंदे ने, रेट वध लगदा है, अगों रेट दुकानां ते जेह्ड़ा ना वध रेट लगदा है। गौरमेंट मुलाजम आके फड़दे ने, तंग करदे ने नजायज़। रेट जेह्ड़ा ना सही होना चाहिए लिस्ट दा, जेरी गवर्नमेंट लिस्ट भेजती है। रेट्स में इजाफे की बुनियादी वजह चिकन की पैदावार में कमी, टैक्सीज का बेतहाशा आयद होना और चिकन के सरकारी नरनामे और ओपन मार्केट के नरनामे में वाज़ेह फ़र्क होना है। चिकन का रेट तो ज़्यादा ही है और इसको स्टेबल होना चाहिए। तो जारी बात है, अब हर रोज़ एक नया रेट होता है, अब लोगों को परेशानी होती है। हुकूमत को चाहिए कि इसको इसकी तरह कानून साजिश किस्म की करे कि इसको ज़्यादा अप ना जाने दे, इसको मेंटेन रखें। जिसके तदारक के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम करना होंगे ताकि आवाम को सस्ते दामों चिकन की फराहमी मुमकिन हो सके। जी मियांवाली में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ी तो शहरियों ने दरिया सिंध की मछली खरीदने के लिए मछली मार्केट का रुख कर लिया। मजीद जानेंगे चौधरी मोहम्मद आसिफ आराई से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मियांवाली के शहरियों ने दरियाए सिंध की मछली खरीदने के लिए मियांवाली की मछली मार्केट का रुख कर दिया है। इस वक्त शहरियों की एक कसीर तादाद मछली खरीदने के लिए मौजूद है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे सवाल से बात करेंगे। सर्दी का मौसम है और दरियाए सिंध की मच्छी का जायका भी बहुत टेस्टी होता है और उसके साथ ही हम इधर खरीदने आए हुए हैं। जो दरियाए सिंध की मच्छी है उसका दरियाए सिंध का पानी वैसे भी अच्छा होता है और उसके मुनासिब दरियाए सिंध की मच्छी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। हम खरीदने आए खड़े हैं दरियाए सिंध की मच्छी। ये आप मछली को दिखा सकते हैं, ये सारी मछली पड़ी है, ये हम लेने आए खड़े हैं। आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि ये हमें मुनासिब रेट से मिलती है और दूसरा सर्दी का मौसम है और यानी कि ना सर्दी का मौसम है, कोई कढ़ाई प्रोग्राम बनाता है, कोई गेस्ट के लिए, इसलिए हम दरिया सिंध की मछली खरीदते हैं। दरिया सिंध की मछली जो है जायके और लज़्ज़त के लिहाज से भी अपना सानी नहीं रखती और दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है कि इंतहाई मुनासिब दाम पर जो है वो दरिया सिंध पर मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की जो मछली है उसके रेट जो है वो इंतहाई मुनासिब हैं। इस वजह से वो नाम लेकर दरिया सिंध की मछली ही खरीदने के लिए आते हैं। जी खानेवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर लिया, मगर जब खरीदार कीमतें सुनते हैं तो वो खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस घर चलाना मुश्किल हो रहा है और ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद जानेंगे शेख तारिक से। जी बिल्कुल, खानेवाल में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद ड्राई फ्रूट्स खरीदने शॉप पर मौजूद है। इसी वाले से बात करते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद। नहीं जी लेना क्या है, ये ड्राई फ्रूट एक तो अल्लाह की नेमत है, सर्दियों के तोहफे हैं, ये अल्लाह ताला ने तो सर्दियों के लिए तोहफे बना के भेजे हैं। ये लेने क्या है, हमने पूछा है रेट, काजू 3500 रुपये है, ये चलगोज़ा 10,000 रुपये किलो है, 15,000 हमारी सैलरी है, क्या लेके जाएं हम। जैसा कि शहरी का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ड्राई फ्रूट्स बच्चों के लिए ख़रीदने आए थे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ड्राई फ्रूट्स जो है सर्दियों में किसी नेमत से कम नहीं है। बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत और के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बच्चों को अपने ड्राई फ्रूट्स ख़रीदना और उन्हें खिलाना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया है। जी तलगंग शहर में कायम किया गया वाहिद पार्क भी इंतजामिया की गफलत की वजह से तबाहाली का शिकार है। शहरी इस वाहिद तफरीगाह से भी महरूम होते जा रहे हैं। पार्क की हालत इज़ार ने मुकामी अफराद को मायूस कर दिया है। पार्क में सफाई की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे अकरम नूर से।
جی بالکل، تلنگانگ شہر کا واحد پارک جناح پارک جو کہ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے اس وقت ایک اجاڑ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اگر پارک کی حالت زار کی بات کی جائے تو پارک میں لگا فوارہ، جھولے اور لائٹس جو ہیں وہ ٹوٹ کا شکار ہے، تو پارک میں کوئی صفائی کا بھی نظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ آپ کو گندگی کی ڈھیر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر پکنک منانے آئے تھے، یہاں جب ہم نے آ کے یہاں دیکھا ہے، یہاں سب جھولے ٹوٹی ہوئی ہیں، لائٹس بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں جو بینچ ہے بیٹھنے کے لیے وہ بھی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ ٹی ایم اے تلنگانگ صرف چند فلانگ کی دوری پر قائم کیا گئی ہے، پارک انتظامیہ کے عدم توجہ کا شکار ہے۔ اگر اعلیٰ حکام اس جانب اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس پارک پر توجہ دیں تو یقیناً تلنگانگ کے شہریوں کو ایک عمدہ تفریح فراہم کی جا سکتی ہے۔ جی موجودہ حکومت کی جانب سے گندم نہ خریدنے کے فیصلے اور گندم کا ریٹ کم ملنے کے خدشے پر پتوکی کے کسان شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ مزید جان لیں گے سفیان ورک سے۔ حکومت کی طرف سے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے پتوں کے کسانوں میں بھی شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ چند کسان موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے 20 ایکڑ کاشت کیے تھے، اس دفعہ میں نے ہاف گندم کاشت کیا ہے، کیونکہ پچھلی بار ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ حکومت نے نہ تو ہماری گندم خریدی ہے اور نہ ہی ہمیں اچھا ریٹ دیا ہے، اور اگر اس بار بھی حکومت نے ہمیں اچھا ریٹ نہ دیا اور ہماری گندم نہ خریدی تو آئندہ سال ہم اپنی صرف گھر کی ضروریات کے مطابق ہی گندم کاشت کریں گے۔ پچھلی دفعہ بھی ہماری گورنمنٹ نے گندم نہیں خریدی تھی، جس کی وجہ سے میں نے 10 ایکڑ لگائے تھے، اس دفعہ میں نے 5 ایکڑ لگائے ہیں۔ اگر اس دفعہ بھی گورنمنٹ نے ہماری گندم نہ خریدی اور ہم سے تعاون نہ کیا تو آئندہ ہم گھریلو ضروریات کے مطابق ہی صرف گندم کاشت کریں گے۔ جی جیسا کہ آپ نے مقامی کسانوں کے تاثرات سنے، ان کا کہنا تھا کہ پچھلی دفعہ حکومتی گندم نہ خریدنے کی وجہ سے انہیں کافی نقصان ہوا ہے اور انہوں نے ہاف گندم کاشت کیا، اور اگر اس دفعہ بھی حکومت نے ان کی گندم کی خریداری نہ کی تو انہیں بہت زیادہ نقصان ہوگا، جس سے وہ آئندہ صرف اپنی گھریلو ضروریات کے لیے گندم کاشت کریں گے۔ جی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ منڈی بہاؤدین میں خورنوش کی اشیاء، آٹا، گھی، چینی، دالیں، مسالہ جات مہنگے ہونے سے غریب، متوسط، دہاڑی دار طبقہ پریشان ہے۔ مزید جانیں گے افضال حسین وڑائچ سے۔ جی بتائیے گا افضال حسین وڑائچ۔ اگر بات کریں اس وقت مہنگائی کے حوالے سے تو متوسط دیہڑی دار، سفید پوش جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ شدید مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو بجلی اور گیس کے باری بار بل جو ہے نا وہ عوام کے لیے بہت زیادہ عذاب کا سبب بن چکے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ اگر بات کریں مہنگائی کے حوالے سے خرد و نوش کی جو اشیاء ہے تو وہ بھی اس وقت عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ پھلوں سبزیوں کے علاوہ خرد و نوش کی اشیاء جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جس میں آٹا ہے، گھی ہے، آئل ہے، چینی ہے، دالیں ہیں یا باقی مسالہ جات ہے، تو وہ بھی اس وقت ان کی قیمتیں بھی مسلسل اضافے کی طرف گامزن ہے اور بریک بالکل بھی نہیں لاگ رہی، اور یہ ریٹ اس وقت بڑھنے کی وجہ سے متوسط دیہڑی دار، سفید پوش، تنخواہ دار طبقہ شدید پریشانی کی عالم ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہم مہنگائی کی چکی کے اندر کیا پیس رہے ہیں، ہمیں تو اس وقت جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی کا حصول ہمارے لیے بہت حد تک مشکل ہو چکا ہے۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پنجاب سے کہ خدا را ہوش کے نہ کھلے اور جو خرد و نوش کی اشیاء ان کے ریٹ کم کیے جائے تاکہ متوسط دیہڑی دار، سفید پوش، غریب جو طبقہ اس وقت مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہا ہے وہ بھی 2 وقت کی روٹی کا حصول ان کے لیے بھی ممکن ہو سکے۔ جی چونیا میں گزشتہ روز وقفے سے ہونے والی بارش کے بعد موسم خوبصورت اور دلکش ہو چکا ہے۔ پودے اور پھول بھی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہو چکا ہے۔ مزید جانیں گے مہر وقار انور سے۔ جی دیکھیں، اگر چونیا کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پر گزشتہ روز ہلکی ہلکی کبھی تیز بارش کا جو سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے آج یہاں پر موسم کافی خوبصورت اور دلکش ہو چکا ہے۔ پودے اور پھول بھی یہاں پر ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو یہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کوئی بھی جو
बारिश का इम्कान है वो जाहिर नहीं किया गया। जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो ठंडी ठंडी हवाओं का राज बरकरार हो चुका है, सर्दी की भी शिद्दत में इजाफा होगा। जो शहरी हैं वो घरों में रहें, महफूज रहें और सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लेस्को हकाम का कहना है कि जो शहरी हैं वो बिजली के जो पोल हैं इनसे दूर रहें ताकि वो खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रख सकें। और आज यहाँ पर जो धुंध है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। यहाँ पर चूनिया, छांगा मांगा, इलाहाबाद, इसके गिरदो नवाह में ठंडी ठंडी हवाओं का राज है और यहाँ पर जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है। जी आपको बताएं, सवात कलाम में 13वीं सुनो जीप रेस की तैयारियां मुकम्मल, ड्राइवर्स इन एक्शन। सुनो जीप रेस के सनसनीखेज मुकाबले ख़वातीन ड्राइवर्स भी मैदान में आ गईं। काला में बर्फीले ट्रैक पर जीप रेस देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद की आमद। पाक आर्मी और 4x4 क्लब के इश्तराक से सुनो जीप रेस का शानदार आगाज़ हो गया। रेस में 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में सुनो जीप रेस के मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। सुनो जीप रेस से सयाहों के दिल मोह लिए हैं। सवात की बर्फपोश वादियों में जीप रेस का जुनून उरूज पर है। कार्टलिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट के 17 और 19 के ट्रायल्स जारी हैं, जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नौजवान खिलाड़ी ट्रायल्स देने के लिए पहुंच गए हैं। मज़ीद जानेंगे मुराद अली सरकानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील काटलंग में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रायल्स दुबई थंडर्स की जानिब से मुनक़िद हो चुकी है और अंडर 19 और अंडर 17 के खिलाड़ी यहाँ पर ट्रायल्स दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ के मैनेजमेंट से मुतमईन है कि नहीं और आगे वो टैलेंट जा पाएगा या नहीं। क्योंकि पहली मरतबा काटलंग में ये हो रहा है दुबई थंडर का जो ट्रायल्स है से, तो मैं तो स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ। इस इलाके में ऐसा इवेंट पहले नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्बास आलम है, मैं राइट आर्म लेग स्पिनर हूँ और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो दुबई ट्रायल के लिए। बहुत अच्छा माहौल है इधर और कोचेस भी PCB के, तो अच्छे कोचेस है और सिलेक्शन अच्छी हो रही है। ख़ुसूसन मैं सवात से आया हूँ इनको देखने के लिए और मैं आके बड़ी खुशी हुई कि वाकई इन्होंने बच्चे के टैलेंट को उभारा और यहाँ जो मेहनत ये कर रहे हैं तो हम शुक्रिया अदा करते हैं स्वाद की तरफ से। बहुत अच्छी ट्रायल्स हो रही है और डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पर आए ट्रायल्स देने के लिए। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं सारे लोग आए पाकिस्तान से, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि सबको पूरा चांस मिल जाए। उसके लिए स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए और बैट्समैनों के लिए जितने भी प्लेयर्स हैं उसके लिए अलग अलग कोचेस खड़े हम देख रहे हैं और जो भी नया टैलेंट है हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल, जैसे कि खिलाड़ियों की बातें आपने सुन ली, वो यहाँ पर मैनेजमेंट से भी मुतमईन है और वो पर उम्मीद है कि वो परफॉर्मेंस दिखाकर आगे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जाएंगे। जी लकी मरवत में डॉटसन के अगवा के खिलाफ अहलिया ने दौलत ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने कहा डॉटसन के अगवा पर पुलिस की खामोशी मायने खेज है। मजीद कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक रोड बंद रहेगा। ये मनाजिर आपको इबन की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एहतजाज जारी है और कहा गया है कि एहतजाज जारी रहेगा मुतालिबात की मंजूरी तक। बढ़ती हुई महंगाई में मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। सक्खर के शहरियों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त खाना अब गरीबों के बस की बात नहीं रही। मजीद जानेंगे प्राग शर्मा से। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने सक्खर के आवाम की कमर ही तोड़ कर रख दिए। अगर बात करें सब्जियों के तो उनके भी रेट आसमान पर पहुंच गए और जो दूसरी तरफ चिकन है, मुर्गी है, उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। 680 रुपये तक की जो है मुर्गी फरोख्त की जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। एक मुर्गी का आइटम था या चिकन का आइटम था जो गरीब आदमी की पहुँच में था, अब 680 रुपये का रेट है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई के अंदर लोग किस तरह अफोर्ड करेंगे चिकन को। सब्ज़ी महंगी और दूसरे आइटम ज़्यादा महंगे, कहाँ से बंदा खाएगा। बहरहाल जी बिल्कुल, आपने सुना, इन्होंने यही कहा कि इस वक्त जो मुर्गी है वो गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हो चुकी है। दूसरी तरफ हमने जब दुकानदार से पूछा तो उनका कहना था कि इस वक्त जो है मुर्गी कम आ रही है, जिसके बायस जो होलसेलर हैं वो ब्लैक पर चला रहे हैं, जिसके बायस इनके मुर्गी के रेट बढ़ गए हैं और शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुर्गी के रेट कम किए जाएँ। जी जैकबाबाद में ड्रेनेज के बोसीदा निज़ाम ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। शहर की गलियों में ड्रेनेज का पानी जमा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे शकील खारानी से।
जी बिल्कुल, बात की जाए जैकबाबाद ज़िले भर में जो है सफाई सुथराई की, तो पूरा शहर जो है गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर जो है सीवरेज का गंदा पानी जो है गलियों में जमा हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के चना मौला में, जहाँ पर आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सीवरेज का गंदा पानी जमा हो चुका है। गुजरते हैं शहरी, उनसे बात करते हैं पानी की वजह से और शहर में जो गंदगी, उन लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है। कोई पड़ोसी नहीं उठते हैं तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता, और ये जो अफसरान हैं अगर जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे शहर में पूरी में जो है ना गंदगी है। को 2-4 महीने हो गए हैं। ये जो है साफी कॉलोनी है, ये आगे है चना माला, ये इसका जो हालियत है ये 4-5 महीने से ऐसे ही है। सारा दिन रात ये रास्ता जो आदमी आते हैं तो कपड़े ही जलील हो जाते हैं। शिकायत किससे करें, कोई मानेगा भी नहीं, हमारी बात तो सुनेगा ही नहीं है। आज जी बिल्कुल, जैकबाबाद के शहरियों ने यही मुतालबा किया है जैकबाबाद के ज़िले इंतज़ामिया और मुस्बिल कमेटी के चेयरमैन से कि जैकबाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सीवरेज का गंदा पानी जमा हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गंदगी के ढेर हैं। मुस्बिल हमले को चाहिए कि पूरा शहर जो है सफाई सुथराई किया जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात से कुछ आसानी मिल सके। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सांगड़ में गर्म मलबूसात के लंडा बाजार तो सज चुके, मगर महंगाई के बाद शहरियों का रश कहीं भी दिखाई नहीं देता। मज़ीद जानेंगे जावेद रफ़ीक से। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है तो वहीं पर गर्म मलबूसात की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। मैं इस वक्त सांगड़ में मौजूद हूँ, सांगड़ की मार्केट के अंदर, लुंडे बाज़ार मार्केट में। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सर्दी होने के बावजूद आवाम का रश कहीं पे भी नज़र नहीं आता। लिहाजा हम इस वक्त एक दुकान पे मौजूद हैं, मेरे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये वजूहत है, क्या नाम, कारोबार अभी कुछ कम हो गया है और कुछ अभी ख़रीदार भी कुछ कम है और माल ऊपर से महंगा मिल रहा है। आपने दुकानदार की बात सुनी, उसका कहना था कि सर्दी तो है मगर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के बावजूद शहरियों की जानिब से यहाँ पर लुंडे बाज़ारों के अंदर गर्म मलबूसात पर रश कहीं पर भी नज़र नहीं आता। हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए था कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ ऐसे मलबूसात में भी की कीमतों में इस्तेकाम पैदा किया जा सकता ताकि गरीब मतवसत तबका बआसानी खरीदारी कर सकता। जी, आपको बताया आज़ाद कश्मीर का अहम तरीन मनसूबा रठवा हरियाम पुल ताख़ीर का शिकार। पुल मीरपुर को मांगला डैम के जरिए डिवीज़न मीरपुर के इलाकों से जोड़ेगा। इसकी तामीर से सफरी सहूलियात में इनकलाब आएगा। मनसूबा मुकामी मईशत के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगा और सयाहत को भी तक़वियत देगा। मज़ीद जानेंगे इमरान चौधरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट रठवा हरियाम ब्रिज के मुकाम पर, जो पिछले 22 साल से ज़ेर इल्तवा था और मौजूदा हुकूमत की कावशों की वजह से जो 2025 में इसका दोबारा आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल्लाह के स्पेशल मीडिया एडवाइज़र। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आज यहाँ पर आकर दोबारा इसका संगे बुनियाद रखा और इनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन साल से 1.5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। मजीद क्या कहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। इसमें मुश्किलात ये थी कि ये पहले किसी और फर्म को, ये कंट्रैक्टर कोई और था, वो भी हमने चेंज किया है। फिर इसका डिज़ाइन कुछ और था, वो भी चेंज हुआ है। और फिर सबसे मुश्किल काम ये था कि इसका PC1 जो पहले 2 दफ़ा रिवाइज़ हो चुका था, अभी तीसरी दफ़ा एक्निक से वो रिवाइज़ हुआ है। तो ये भी एक मुश्किल मरहला था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से और प्राइम मिनिस्टर साहब के काविशों से वो भी अभी पाया तकमील हो चुका है और अभी जो है वो एग्रीमेंट भी हो चुका है FWO के साथ। जी बिल्कुल, करना मारूफ साहब का भी यही कहना है कि मई 2026 को जो प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह हुकूमत आज़ाद कश्मीर की मुकम्मल कोशिश है कि इसको कंप्लीट किया जाए। रठवा हरियाम ब्रिज के बनने के बाद जो तकरीबन इसका फैसला है, तकरीबन 22 से 25 मिनट इसका जो दुरानिया है वो कम होगा, जिसकी वजह से शहरियों की जो मुश्किलात है इसमें मजीद है जो कमी आएगी। जी, वादी नीलम के सियाहती मकाम शारदा में मतला साफ होने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शारदा के मकाम पर दरिया नीलम के पानी ने बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर ली, जो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। दूर दराज से सयाह इस मंजर को देखने के लिए आ रहे हैं।
ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دیتے ہوئے برف پر چلنے سے اجتناب کی ہدایت کرتے ہوئے حفاظت کے لیے پولیس اہلکار بھی تعینات کر دیے ہیں۔